جی آج ان کا آخری دن بھی ہے اور آج کے دن وہ ایک اہم فیصلہ اس حوالے سے وہ بھی دینے جا رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ 26 اکتوبر 2020 میں جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا لوکل باڈیز ایکٹ کے حوالے سے وہ آج جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنانے جا رہی ہے۔ راشد حبیب ہمارے نمائندے ہیں، ہم ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ جی اس حوالے سے ان کے پاس مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ جی راشد جی وہ محفوظ فیصلہ چیف جسٹس نے سنا دیا ہے اور یہ خوشخبری ہے سندھ کے بلدیاتی اداروں ایم کیو ایم کے لیے کہ ان کی پٹیشن منظور کر لی گئی ہے اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی متعدد دفعات جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 180A سے متصادم ہے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کو آئین سے ہم آہنگ کیا جائے اور جو بلدیاتی اختیارات ہیں وہ بلدیاتی ادارے ہی استعمال کریں۔ سندھ گورنمنٹ جو ہے صوبائی گورنمنٹ وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتی، بلدیاتی پروجیکٹ جو ہیں وہ بلدیاتی ادارے ہی بنائیں گے، سندھ حکومت ان کو نہیں بنا سکتی، صوبائی حکومت۔ اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنایا جائے اور جو ان کو مالیاتی خود مختاری ہے وہ دی جائے اور بلدیاتی اداروں کے جو مالی واجبات ہیں وہ فوراً ادا کیے جائیں اور کوئی ایریز باقی نہیں رہنے چاہیے۔ ملیر ڈیولپمنٹ ایکٹ، واٹر بورڈ ایکٹ اور دوسرے ایکٹ جو ہے ان میں عدالت نے ترامیم تجویز کرتے ہوئے ایم کیو ایم کی پٹیشن جو ہے وہ نمٹا دی ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے سندھ کے بلدیاتی اداروں کے لیے کہ ان کو اختیارات واپس دے دیے گئے ہیں اور مالی خود مختاری دینے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ راشد آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا، ہم ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر ایم کیو ایم کی پٹیشن منظور کر لی ہے۔ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں، یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا۔ ساتھ میں سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر ایم کیو ایم کی پٹیشن آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ یہ منظور کر لی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں۔ بالکل جی، یہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی، ایک فیصلہ بھی محفوظ کیا گیا تھا 2020 میں، یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے اور بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا نیا منصوبہ یہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی۔ تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں، سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدیحہ۔ بالکل جی فیصل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فیصل، یہ بہت اہم فیصلہ ہے جو کہ آپ کی پارٹی کے لیے جو آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر ایم کیو ایم کی پٹیشن منظور کر لی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات میں۔ سب سے پہلے تو فیصل میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بھی ایک بار ریوائز کراتے چلیں کہ جو آپ لوگ جو درخواست لے کے گئے تھے وہ کیا درخواست تھی؟ 2013 کا یہاں پر قانون موجود ہے جو صوبے سندھ میں ہے مقامی حکومتوں کا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ قانون آئین کے آرٹیکل 140A کے بالکل منافی ہے اور کوئی بھی قانون ملک میں آئین کے برخلاف نہیں بننا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2013 میں یہ قانون آیا اسمبلی میں تو میں قائد اختلاف تھا صوبے کا اور ایم پی ایم کے 51 MP نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ پورے صوبے میں کوئی آواز نہیں تھی ہمارے علاوہ۔ اس کے بعد اکتوبر 2013 میں ہم کورٹ چلے گئے اور 2017 میں سوائے ایم کیو ایم کے کوئی نہیں گیا سپریم کورٹ یہ پٹیشن لے کے جس پر آج فیصلہ آیا ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کراچی ہو یا جیکب آباد، میئر مقامی حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے پاس پانی کا، سیوریج کا، صفائی ستھرائی، یہ سارے کے سارے ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، یہ اختیار ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے جو لوگ اپنے مقامی نمائندوں سے توقع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا فیصل کہ یہ اب جو فیصلہ آیا ہے اب اس کے اثرات ہم کیا دیکھیں گے، یعنی کہ صوبائی حکومت اب اس کے بعد کیا کرے گی اور کیا کرنے کی پابند ہوگی؟ دیکھیے ابھی تو تفصیلی فیصلہ جب ہمارے پاس آئے گا، ابھی ہم آرڈر کی کاپی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے وفاقی وزیر امین اللہ صاحب وہاں پر موجود ہیں، تو ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا کیا ڈائریکٹیو دیتے ہیں۔ دیکھیے سپریم کورٹ تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا ویسے ایک چیز، کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسک جو ہمارے پاس بھی ابھی کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہوگی۔ اچھا، اور بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی، یہ نیا منصوبہ کیا تھا؟ نہیں دیکھیے منصوبے یعنی جو بلدیاتی حکومتوں کا کام ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ سندھ گورنمنٹ نہیں بنا سکتی، ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیے جو میئرل جابز ہیں
वजीर आला सिंध कराची में अंडर पासेस के इफ्तिताह करते हुए आपको नजर आते हैं, सड़कें कर रहे हैं, बिलावल साहब आगे कर रहे हैं। भाई ये मेयर के काम है, पानी का मंसूबा है वो मेयर का काम है, आप उनको करने दीजिए। मास्टर प्लान बनाना, ये सारी चीजें जो रेवेन्यू फिर कलेक्ट जनरेशन है। देखिए हो ये रहा है कि पैसा तो जा रहा है कराची से, जवाब में सूबाई हुकूमत जो भी पैसे देती है वो कहते हैं हम खैरात दे रहे हैं यहाँ पर। भाई आप मुझसे 325 अरब रुपए तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रही है सूबाई हुकूमत, और जवाब में हमें क्या दे रहे हैं आप, पेनीज। तो रिसोर्सेज के बगैर कोई भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। सूबाई मालियाती कमीशन बहुत अहम है। आई होप कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी डायरेक्टिव दिया, और सुप्रीम कोर्ट देखिए आइन की तशरीह कर सकती है कि आर्टिकल 140 आइन का ये मौजूद है। सूबाई असेंबली सिंध ने जो कानून बनाया है वो आइन के तहत नहीं है, तो उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं, उसमें डायरेक्टिव भी दे सकते हैं। आई होप कि बहुत ज्यादा पोर्टेंट फैसला हो। सही। अच्छा फैसल, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हसन अयूब हमारे नुमाइंदे जिस तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद भी जान लेते हैं कि फैसले में कौन कौन से अहम नुकात सामने आए। सो हसन, और कौन कौन सी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कही गई हैं इस फैसले पर? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद जो है कि बलदियाती हुकूमतों का इख्तियार है। बलदियाती हुकूमतों के तहत आने वाला कोई भी नया मंसूबा जो है वो सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बलदियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। और सुप्रीम कोर्ट ने बलदियाती जो इख्तियारात केस में जो है एमक्यूएम की दरख्वास्तों को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अभी जब इसके डिटेल जजमेंट आएगी, तहरीरी फैसला हमारे सामने आएगा, तो फिर भी देखेंगे कि एक दरख्वास्त है की रिजेक्ट हुई है, क्या वो मेन पिटीशन की जो है रिजेक्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की है, या कुछ जो जिमनी उसके साथ सपोर्टिव एप्लीकेशन थी वो मुस्तरद हुई है। ताम एक एप्लीकेशन जो है इनकी वो मुस्तरद हुई है, लेकिन बाकी को डिस्पोज ऑफ कहा है। इसके साथ साथ जाती हुकूमतों के तहत जो आने वाला कोई भी नया मंसूबा जो है ये सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती, ये बड़े वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। अच्छा, और साथ ही भी कहा है ये कि तो हमारे पास स्टिकर्स भी आ गए हैं, ये डिटेल्स भी आ गए हैं। अब जरा ये बताएं कि ये जो है वो हम एक चीज कह रहे हैं कि पिटीशन मंजूर कर ली, फिर दरख्वास्त निपटा दी, अब इसके ऊपर कोई फर्दर भी कोई इसके ऊपर मजीद बात होगी इस मामले पर, ये मामला जो है अब ये यहाँ पर सेटल हो चुका है, इसके ऊपर तफसीली फैसला आएगा और उस पर अमल दरामद की पाबंद होगी सूबाई हुकूमत? दैट्स इट जी। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है, ये तो अमल दरामद यकीनी बनाना है ठीक है गवर्नमेंट ने। लेकिन इसमें सबसे अहम बात मैं बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रखने की पाबंद है, और जो बलदियाती हुकूमतें हैं उनको माली, इंतजामी और सियासी इख्तियार देना जो है यकीनी बनाना है। ये अब कदगन है जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर। साथ सिंध हुकूमत को ये भी कहा है कि मकामी हुकूमतों के साथ जो है वो जो उन्होंने वर्किंग रिलेशन बनाना है, उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो आइन का आर्टिकल 140A के तहत जो है ये हम आंगी जो है ये जरूरी है। और साथ साथ ये हुक्म भी दिया है कि जो सिंध का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है इसकी शेख 74 इसको कलदम भी करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि बड़ी अहम बात है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की जो शेख 74 और 75 है, उस शेख में था क्या, ये जरा हमें बता दीजिएगा। मुझे इसकी जो है वो अच्छा चलिए सही, ठीक है। हसन, हम हमारे साथ सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। फैसल, जैसे भी आपने सुना कि हसन अयूब हमें बता रहे थे कि जो फैसला आया उसमें कहा गया है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक जो 74 है और 75 उसको तो कलदम करार दे दिया गया है। साथ में सिंध हुकूमत तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी को यकीनी बनाएगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर आया है। और साथ में स्पेसिफिकली क्योंकि हमने आज देखा है कि हुकूमत आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी 26 अक्टूबर 2020 में जो फैसला महफूज किया गया था, तो अब खैर वो आज सुनाया गया है। तो फैसल, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए तफसीलात जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि हमारे पास आ जाएंगी, तो देखिए हमारी तो तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी। वजह उसी ये है कि पार्लियामान का ये इस्तेहकाक है कि वो आइन साजी करे, आइन बनाए, कानून साजी करे, और सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है कि वो उसकी तशरीह कर सकती है आइन की उन शिकों की और कवानीन की। हमारे सामने था कि आइन का आर्टिकल 140 से मौजूद है। अच्छा। सूबाई असेंबली सिंध ने उससे बिल्कुल बरखिलाफ एक कानून बना दिया है। अच्छा, हमारी तो फैसल भाई जरा एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए साथ रहिएगा। मैं जरा वो ये जो आर्टिकल 140 है तो अपने नाजरीन के लिए उनको जरा बयान कर दूं कि वो है क्या। वो है ये कि उसके अंदर लिखा गया है कि ईच प्रोविंस शेल बाय लॉ एस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स, यानी कि इसके अंदर जो निचली सतह पर जिन जमहूरियत के नसरियों की हम बात करते हैं उनको बाइख्तियार बनाने की, उनको इंतजामी और माली इख्तियारात देने की बात की गई है। इसमें कोई इतनी कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ऐसे ही है फैसल भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि रिसोर्सेज के बगैर, माली इख्तियारात के बगैर, आइन तो कहता है कि वो देने हैं मकामी हुकूमतों को, लेकिन सिंध हुकूमत और सिंध असेंबली नहीं देती। तो इसलिए ये बहुत खुशाइंद है कि अगर ये डायरेक्टिव है और इसको मजीद मेरी ख्वाहिश है कि फैसले में और स्पेसिफाई हो चीजें और उसमें ये कहा गया हो कि जो कानून है ये बिल्कुल आइन के आर्टिकल 140A के खिलाफ है, जो सिंध का कानून। लेकिन एक चीज जरा समझाइएगा कि ये आइन में ये चीजें वाज़ेह हैं, हम सब के ऊपर लाजिम है कि हम आइन का और कानून का एहतराम करें, तो उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद ये सारी चीजें अब सेटल होकर फैसला आया। ये वैसे भी तो अमल कर सकती थी सिंध हुकूमत इस आईनी मामले पर, एक डायरेक्टिव मौजूद। देखिए बदकिस्मती ये है कि पूरे मुल्क में जहां जहां बलदियाती हुकूमतें जो जो सियासी जमातों ने बनाई है ना, वो कोई भी आइन का आर्टिकल 140A के उस हिसाब से नहीं है इसका। खासकर सूबे सिंध में तो इसलिए नहीं है कि इन्होंने 2013 में ये कानून बनाया जिसके खिलाफ MQM चली गई सुप्रीम कोर्ट में। बाकी सब तो सोते रह गए, लेकिन हम चले गए। अच्छा, इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक, हर कानून का अशफाक होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस। उस कानून का में इन्होंने ये छाप दिया आइन का ये आर्टिकल 140 से, लेकिन मेयर के पास से पानी का इख्तियार, सीवरेज का इख्तियार, सफाई सुथराई का इख्तियार, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारी की सारी चीजें तो ले ही ली। इन्होंने जुल्म क्या किया? इन्होंने कराची की जो मुंतखब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी उसके पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऊपर के अखराजात करने पर भी पाबंदी लगा दी। 2 करोड़ रुपए में कराची में एक मकान नहीं बनता और कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहाँ से पुल बनाएगी, अंडरपास बनाएगी, सड़कें बनाएगी? ये लाला के चीफ कोर्ट ने कम से कम ये डायरेक्टिव तो दिया है। एंड आई होप कि सिंध असेंबली इसको आदर करे। सुप्रीम कोर्ट इसको आइन, उसको ये इख्तियार देता है कि अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। सही। अच्छा फैसल, जैसे कि सेंसस के मामले पर भी आपकी पार्टी स्पेसिफिकली आपने अब सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया हुआ है, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकल एक्ट था, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, इसके हवाले से भी आपकी पार्टी कब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ में रुजू किया हुआ था। तो अब जैसे जैसे फैसले के मुहर्रिकात सामने आ रहे हैं, कितना खुशाइंद आप उसको तस्वुर करते हैं? देखिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, मैं दिया कि तवक्कुआत मेरी तो बहुत ज्यादा थी कि 26 अक्टूबर अगर 2020 फैसला महफूज था, काश उसी वक्त आ जाता, और बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। जितना अनफोल्ड होगा मुझे अंदाजा होगा कि मिठाई खानी भी है, मिठाई नहीं खानी है। लेकिन एक कराची की शहरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से बहुत तवक्को थी। लीव असाइड MQM और पॉलिटिकल वर्क है, एक मैं शहरी हूँ इस सूबे का, मैं टैक्स देता हूँ। मेरी बलदियाती हुकूमत इसलिए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है शहर की, क्योंकि मेरी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी हसासियत नहीं है शहर के बारे में, क्योंकि वो लेकिन एक चीज है, मुंतखब नहीं होते हैं। एक चीज है कि अभी ये जो इन्होंने एक तरह से मुआहिदा किया है, एक समझौता किया है जो जमात इस्लामी के साथ, उसके निकात के ऊपर हम कल परसों 2 दिन पहले बल्कि बात कर रहे थे कि वो किस तरह से वो चीजें सामने आई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है वो उसकी कुछ चीजें उनके इस मुआहिदे में रिफ्लेक्ट करती हैं या नहीं? देखिए, जमात इस्लामी का जो मुआहिदा है उसमें 70-80% तो चीजें वो हैं जो 2013 के कानून या 2021 की तरामीम में पहले से मौजूद थी। मेरा शिकवा यह है जमात इस्लामी से कि जब MQM ने भरपूर प्रेशर डाल दिया और पीपुल्स पार्टी एक कोने पर खड़ी नजर आई, क्योंकि हमारे मुजाहरे पर जो उन्होंने लश्कर कशी की, खवातीन को मारा, लाठीचार्ज किया, और ये पूरे मुल्क में इनको तानो तशनी का मुजाहरा सामना करना पड़ रहा था। रात के 2 बजे इन्होंने जाके जमात इस्लामी के साथ मिलके मुआहिदा किया। जमात ने तो इनको रिलीफ फराहम किया है। हैविंग सेड दैट, कोई उसमें बहुत ज्यादा बड़ी चीजें मुझे नजर नहीं आई। बड़ी चीज क्या हो सकती है? बड़ी चीज हो सकती है फाइनेंशियल इख्तियारात। जो आइन आपने अशफाक अभी पढ़ा, आइन में लिखा हुआ है ना कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो भाई जब माली इख्तियार और जिम्मेदारी नहीं होगी, मेरे पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे सूबाई मालियात कमीशन से। सूबाई हुकूमत ने मुआहिदे में ये कहा कि जी वो हम कायम करेंगे। ओ भाई, तुमने तो 2013 के कानून में लिखा हुआ है
8 साल से कानून तुमने नहीं बना के दिया। तो इसलिए मुझे ये शिकवा है कि उस मुआहदे में देयर इज नथिंग सब्सटेंशियल। सही, यानी कि जितनी मर्जी प्लानिंग भी की जाए लेकिन अगर मालियाती खुद मुख्तारी ना दी जाए तो मामला काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पैसे नहीं होंगे तो खर्च कहाँ करेंगे? आप उसको एग्जीक्यूट आप उसको कैसे करेंगे, वो वाली बात है। तो फैसले मुझे बताइएगा कि अब का जो फैसला आया है उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो बल्दियाती इदारे हैं ये आज का आने वाला फैसला और जो आगे आने वाले बल्दियाती इदारे बनेंगे ये इनको तकवीत कितनी देंगे, इनको कितना स्ट्रॉन्ग करेंगे? देखिए, ये मुझे बहुत सेहतमंद चीज लग रही है कि कोई भी बल्दियाती जो मंसूबा है वो सूबाई हुकूमत उसको नहीं कर सकती, यानी न प्लान कर सकेगी, आई होप ना एग्जीक्यूट कर सकेगी, और उसकी रिसोर्सेज ट्रांसफर होंगी। और भी मुझे देखना है कि शिफ्ट 74-75 क्या है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की, और ये सारी चीजें समथिंग वो कहते हैं ना कि ना होने से होना बेहतर है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि और बहुत ज्यादा होता और ये पूरा कानून स्ट्राइक डाउन किया जाता और सिंध असेंबली को ये डायरेक्टिव दिए जाते कि आप आईन से मुस्तक़िल कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि इसको हमारे लीगल जो माहिरीन है, हमारे कानूनी एमकेएम के, वो हमें बताएंगे कि हमारी ही पिटीशन पर क्योंकि ये फैसला आया है तो हमें इसमें और क्या क्या काम करने हैं, और आया इसी पर राजी खुशी हो जाना है या मजीद अपीलों में जाना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब सिंध गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये इस बारे में कह दिया जाता है कि जनाब फैसले पर मिनोअन अमल होगा और कानून की बालादस्ती और अदलिया का हम एहतराम करते हैं, लेकिन उसके बाद दे ऑलवेज फाइंड अ वे। उनके पास कोई लीगल ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं जो वो यूज कर सकें? देखिए, वो मुझे ये मादरत के साथ कहने का मौका दीजिएगा कि 18वीं तरमीम के बाद तो ऐसा लगता है कि सिंध को आजाद रियासत हो गई है। अब वो तो अपनी पुलिस फोर्स भी बनाने जा रहे थे। आपने देखा पिछले दिनों कि जब वफाक ने कहा कि हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को हम यहाँ से ट्रांसफर आउट कर रहे हैं, तो और इस मंसूबे पे अमल के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है। तो सिंध हुकूमत से तो मुझे किसी भी किस्म की तवक्को है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, आईन पाकिस्तान देता है कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया को, एग्जीक्यूटिव को बाकायदा अहकामात दे सकते हैं, और उन अहकामात की पाबंदी रियासत के तमाम इदारे करते हैं और करवाते हैं, इंश्योर करवाते हैं। ये आईन में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात दिए हैं तो उन पर अमल दरामद के टूल्स आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को फराहम करता है। सही। अच्छा, क्योंकि हसन अयूब हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, तो हम हसन आपसे भी जानना चाहेंगे कि मीनवाइल जितनी देर हम फैसले से बात करते रहे, आपके पास और बहुत सारी पॉइंट्स आए जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जो रिटन ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेबसाइट ही खोल के बैठे हुए थे कि अभी फैसला आता है और हम उसको चेक करते हैं। बहरहाल जो जैसे फैसले अभी बता रहे थे, इनकी कन्वर्सेशन भी मैं सुन रहा था, तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो प्रोविंशियल जो फाइनेंस कमीशन है वो जो है वो उसकी जरूरत है कि जब सूबों को जो एनएफटी के तहत जो है वो वसाइल मिल गए, तो अब सूबों को आगे काम बनता है कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को जो है वो वसाइल तकसीम करें। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये ही जो है वो प्रेयर थी एमक्यूएम की, और एमक्यूएम भी चाहती है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है ये बाख्तियार बने। जी अच्छा, फैसल सब्जवारी साहब, ये बेसिकली मैंने ये शिकें निकाली हैं, ये 74 और 75, तो जरा मैं पहले बयान कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये है क्या। तो उसके अंदर इसका जो वो है कि ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम काउंसिल्स टू गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। इसमें लिखा है कि ये 74 है, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, government may take over the management and control of any institution or service maintained by a council, and B, transfer the management and control of any institution or service maintained by government to a council। ये है 74। अब 75 है कमर्शियल स्कीम्स। उसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट में सेट अप अ बोर्ड, अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेट बॉडी टू परफॉर्म any one or more functions of any councils singly or jointly with any public or private body, and may acquire, continue, manage or operate any commercial venture or activity as deemed necessary in the public interest। तो बेसिकली ये दो शिकायतें जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो पहले आप इस पे कमेंट कर लें। खुर्रम शेर जमान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस पे बात करेंगे। जी, आर्टिकल 58(2)(b) था, समझ लीजिए ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का ना, कि जिसके तहत ये तहलील कर सकते थे 74, और 75 जो है ये इसलिए था कि उन्होंने कहीं पर भी ये
آپ کو پتہ ہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تو بادشاہ ہے پیپلز پارٹی. تو وہ مختلف کام کچھ جس طرح میں کہتا ہوں کہ سندھ کا بجٹ بھی جو ہے نا صوبائی وہ ٹھیکیدار بناتے ہیں, ٹھیکیداروں کا بجٹ ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نہیں بناتے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ چیزیں ڈالی کہ سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. تو وی آر ہیپی کہ کچھ ریلیف ملا ہے, لیکن اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ پورے کا پورا اسٹرائک ڈاؤن کیا. پہلے 74 تو بڑا ہی خطرناک تھا. اچھا, اور ساتھ میں کیونکہ خرم شیر زمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم شیر زمان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائے گا کہ ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ نے سنایا, اور اس میں کیونکہ آپ کی پارٹی اسد عمر تو فروری 2020 میں انہوں نے عدالت میں درخواست بھی دائر کی تھی کہ جو شک ہے 74 اور 75 کو ان کو کالعدم جو ہے وہ قرار دیا جائے. تو اب جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی یہی نکات سامنے آئے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں, اب وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں نا. آپ کو یاد ہو کہ کچھ دنوں پہلے بلاول زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ جو لوگ اس قانون کو کالا قانون کہہ رہے ہیں ان کا منہ کالا. تو آپ دیکھیں کہ یہ, میں سب سے پہلے تو MKM پاکستان کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا. یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے, اور ایسے موقع پہ ایسی خبر آنا اور چیف جسٹس صاحب کے آخری دن یہ خبر آنا یہ میسج دیتا ہے کہ کراچی والے صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے تھے, پورے صوبے بھر کے لیے لڑ رہے تھے. لاڑکانہ کے لیے بھی جہاں سے بلاول جیت کر آئے, جہاں سے زرداری نواب شاہ سے جیت کر آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے مراد علی شاہ جیت کر آئے, اور جہاں سے ہم بھی جیت کر آئے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ایک پیٹیشن ہم نے بھی جمع کرائی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں, جس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو ایگزسٹنگ آپ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں مرتضی وہاب, وہ ایک انٹرم سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. یہ الیکشن کو پہلے سے رگ کیا جا رہا ہے, کیونکہ انٹرم پیریڈ جو ہوتا ہے اس دوران آپ کسی سیاسی شخص کو نہیں بٹھا سکتے ہیں. یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ 4 ہفتے کے بعد ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے, جس میں 2 ہفتے اب رہ گئے ہیں, جس میں نوٹس بھی ہو گیا سندھ گورنمنٹ کو. اور آپ انشاءاللہ دیکھنا کہ اس ایڈمنسٹریٹر کو بھی ہٹایا جائے گا جو بیٹھ کر یہاں پہ پری پول ریگنگ کر رہا ہے. سو میں MKM کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میرے خیال سے ہم تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے یہ سارے سلسلے چلائے ہیں اور احتجاج ہوئے ہیں, دھرنے ہوئے ہیں, مار پٹائی ہوئی ہے, MKM نے تو اپنے کارکن کی جان بھی دے دی ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ہوگی, اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے منہ کالے ہوں, وقت بتائے گا کہ کس کا منہ کالا ہوگا. چلیں فیصل, آپ کے اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ جی. فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, خرم شیر زمان PTI کے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ساتھ میں حسن ہمارے نمائندے. ہمیں اسلام آباد سے تمام صورتحال سے آپ تینوں کا بہت شکریہ.